Hello everyone, I'm Vikrant and I'm here back with you guys one again. And here in this video, what are we going to do? That's a big question. So, actually, it's not a question anymore because it's already written here that today in this video we are going to do passive voices. Fine. So, what are we doing? Passive voice. Passive voice, what is it actually? Okay, this is a big question. So, see, passive voice is something you can understand by this. See, what is the sentence first of all? Like for the active sentence, we have for the active sentence, what is the structure of active sentence? That is subject plus verb plus object. Fine. This is the structure I told you in the beginning of tenses. मैंने आपको टेंसेस के इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों कंबाइन कैसे रहते हैं, क्या इनका फॉर्मूला रहता है एंड एवरीथिंग. फाइन. सो अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन, देन गो फर्स्ट चेक आउट द टेंस इंट्रोडक्शन वीडियो एंड देन कम बैक एंड देन यू गाइज विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. फाइन. सो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और अगर आपने टेंस भी नहीं पढ़े हैं तो पैसिव पढ़ने से पहले जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस पैसिव वॉइस यू गाइज आर सपोज टू स्टडी टेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. फाइन. So just go there, check it out, and then come back. Okay, so subject, verb, and object. Fine. So, what is this? Is the active sentence, and here we can get to know that for the passive, we have the just opposite structure. Fine. What is that? Opposite कैसे होगा देखिए. First of all, we will write object, then verb, and then subject. So this subject, what we have. Here this will go there. Okay, जो subject जो हमारा था वो यहाँ पर था पहले हमारे पास, but now it will go at the back side. Now the object will work as a subject and the subject will work as a object. Like I can give you an example. I drive a car. Fine. मैं कार चलाता हूँ. So this is the active sentence we have, and now we will change it into passive. So what will happen? When we will change it into passive, it will be a car is driven. Fine. A car is driven. Ab I. When we'll change I, it will be me. The car will be driven by me. Sub like noun will be changed into pronoun, so that will be I का me हो जाएगा. So fine, a car is driven by me. This is how we can change the sentences. Okay, this is the structure, basic thing you need to know. That is कि subject की जगह पे object चला जाता है ना, object की जगह पे subject आ जाता है. This is the thing you are supposed to learn first of all. Fine. This was the first thing that I told you. Okay, so this is simple. If the arrow is going this way, then in this the arrow will go this way. So this is the simple thing. Fine. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. फाइन. इट्स अ बेसिक थिंग. अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज. फाइन. ये तो हो गया हमारा बेसिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है जो हमने टेंस में पढ़ा है उस सेंटेंस का जस्ट ओपोजिट हो जाता है. क्या हो जाता है? ओपोजिट हो जाता है. एंड नाउ व्हाई डू वी नीड पैसिव्स? हमें पैसिव की जरूरत क्यों होती है? पैसिव इज लाइक एक्टिव में भी बन सकता है. मैं कार चलाता हूं या कार मेरे द्वारा चलाई जाती है. बात तो एक ही कह रहे हैं आप. तो फिर वाई डू वी यूज पैसिव्स? पैसिव यूज किए जाते हैं. वी यूज पैसिव जस्ट टू इम्प्रूव आवर कन्वर्सेशन. ओके, जस्ट टू शो दैट अनदर पर्सन दैट वी नो समथिंग अबाउट द ग्रामर. ओके, सो दिस इज वाई वी यूज पैसिव्स. पैसिव हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम सामने वाले को बता सकें कि देखो भैया हमें भी आते हैं क्या पैसिव्स, हमने भी पढ़ी है क्या ग्रामर. फाइन. सो दिस इज द डिफरेंस. To create that difference, we need to make some of the sentences into active and some of the sentences we can make in passive also. जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपने पेपर के में अंदर पैराग्राफ लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं, सो दैट इज बस लाइक हाँ, Amanda's mom scolded what? Sorry, yeah, Amanda's mom scolded her. So she was scolded by her mother. ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सेम है कि उसको उसकी मॉम डांटती थी, उसकी मॉम के द्वारा उसको डांटा जाता था. बोथ द सेंटेंस आर सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस दैट वन सेंटेंस इज लाइक यू जस्ट पिक्ड इट फ्रॉम द बुक और द आंसर एंड यू जस्ट रोट इट. अनदर वन इज लाइक यू पुट सम एफर्ट इनटू इट. आपने उसके अंदर कुछ एफर्ट्स लिखे डाले और आपने जो सेंटेंस था जो एक्टिव में था उसको पैसिव बना के लिखा. इट लुक्स मोर इफेक्टिव.
ठीक है, जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको लगेगा नहीं यार बच्चे को ग्रामर आती थी, उसने थोड़ा बहुत बना करके लिखा है सेंटेंस, सो दिस राइट थिंग, इट्स अ गुड थिंग, फाइन। एंड इन दी लाइक स्पीकिंग ऑल्सो, जब आप बात करें बोलने की, तो उसके अंदर भी ये होता है मोस्टली व्हेन यू विल लिसन टू सम पीपल दोज हु हैव लर्नड इंग्लिश not by the grammar, just by listening to something, okay, so in that case they will not speak in a passive manner, fine, they will not speak in this manner, they will just speak like I drive a car, okay, car is driven by me, they will never say it. So this is the thing to create a very good and effective difference. You guys are supposed to learn passives, fine. So let's start. One more thing I just forgot to do, that is whenever you write passive voice, okay, there is a thing we write 8 means जो 12 टेंसेज होते हैं हमारे पास, उन 12 टेंसेज में से ओनली कितने टेंसेज के पैसेज बनते हैं? ओनली 8 के, फाइन। 12 में से ओनली 8 के हम पैसेज बना सकते हैं, सो दिस इज पैसिव वॉइस ओनली 8, फाइन। सो आफ्टर दैट वन मोर थिंग यू गाइज आर सपोज्ड टू रिमेंबर, दैट इज V3। व्हाट इज इट? V3 मीन्स वर्ब्स थर्ड फॉर्म। आपको ध्यान रखना है, why have I written it here? Because whenever you guys will remind it, you know, whenever you guys will be just recalling the thing like passive voice, so you will remember this one also कि वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था, एक तो 8 मतलब कि 12 में से सिर्फ 8 के बनेंगे, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें पूरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है और कोई फॉर्म हम यूज ही नहीं करते हैं, फाइन। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। दूसरी बात, जो पूरा पैसिव हम पढ़ेंगे उस पूरे पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर काम में आएगा, फाइन, only a basic structure we will follow. So let's start with the thing that is, first of all, present simple, fine. We'll start with the present simple, and then here we have our past simple, and then here we have, this is future simple, fine. Don't say it future simple, man, not at all. Okay, this is future simple, present simple, and past simple. Oh, that's great, man, fine. So what are we supposed to do? We are supposed to listen to it very carefully and watch, fine. So for the active, what is the active structure of present simple? This is subject plus verb first form plus s or es plus object. This is the active, and now we will make the passive. What will be the passive one? Passive one क्या होगा? देखिए, पैसिव के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्ट्रक्चर बनाना इसका। ऑब्जेक्ट प्लस, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, फॉर ऑल दीज सिंपल टेंसेस, ये जितने भी सिंपल हैं तीनों, ये तीनों सिंपल अपने आने वाले आगे वाले, कौन सा है? इसका आगे वाला कौन सा होगा? कंटिन्यूस। इसका भी कंटिन्यूस, इसका भी कंटिन्यूस। तीनों अपने कंटिन्यूस वालों से उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उधार ले लेते हैं कुछ समय के लिए। दे बोरो दैट हेल्पिंग वर्ब फॉर सम टाइम, ओके, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, फाइन। सो इफ प्रेजेंट सिंपल विल बोरो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, व्हाट दैट विल बी? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, now fine, I just told you verbs third form will always be there, so just like that we will put object plus is plus verbs third form plus by plus subject in the end, fine, got it? This is the basic structure. अब आपको क्या करना है? सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को आपको पूरे 8 टेंसेस के अंदर चेंज कर देना है और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही रहेगी, बाय यही रहेगा, सब्जेक्ट यही रहेगा, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है पूरे 8 टेंसेस के अंदर। तो अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसका एक्टिव लिख लेते हैं हम। देखिए, इसका एक्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फाइन। अब देखिए, सेम स्ट्रक्चर विल फॉलो। पैसिव सेम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस में was verb। सो आई विल जस्ट नॉट राइट द होल थिंग, आई विल जस्ट राइट द थिंग जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस है। सो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें इसे मारे और इसमें was verb होगा, बाकी ये पूरा सेम चलेगा। ऑब्जेक्ट प्लस was verb प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस subject, fine, this is the thing. And after that, in this we will have again the same thing, that's the dash, and then will be is the
helping verb. Fine. So that is the helping verb of future continuous. That is what we have borrowed. Fine. Next. Taking a positive sentence which is she drinks water all day. Fine. Now, when we will make this sentence in past, the active one, what it will be? She drank water all day. Fine. अब जब हम इस सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे तो व्हाट इट विल बी? शी विल drink water all day. तो पूरे दिन पानी पिएगी. फाइन. अब देखिए जब हम सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में बदलने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है. व्हाट विल हैपन? ये जो है पीछे आ जाएगा. अब देखिए ये वाला सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर पे, लेकिन हमें इस वाले सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वाटर. तो विल पुट वाटर. इसके बाद में से क्या आएगा वाटर के लिए? इज. वाटर इज. अब ड्रिंक वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर चाहिए थर्ड. सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. सो विल पुट ड्रंक. फाइन. वाटर इज ड्रंक. ठीक है. एंड देन बाकी क्या बचा? वाटर इज ड्रंक. अब यहाँ पे बाय, तो बाय हमने यहाँ पे लगा दिया. अब किसने पिया पानी? मैंने. सो दैट इज सॉरी उसने, शी. तो शी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउन का प्रोनाउन हर. फाइन. वाटर इज ड्रंक बाय हर. अब यहाँ पे लास्ट में जो बचा है ऑल डे, उसको हम ऐसे कैसे लास्ट में ऑल डे लिख देंगे. फाइन. सो दिस इज द थिंग. पूरा स्ट्रक्चर आपको सेम रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा में बचे उसको वैसे के वैसे ही रख देना है यहाँ पे. अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था इसी के अंदर कि कैसे जो स्ट्रक्चर है वो सेम चलेगा. सिर्फ क्या चीज चेंज करेंगे हम यहाँ पर? ये इज एम आर. फाइन. सिर्फ इज एम आर हम चेंज करेंगे. सो दैट इज द थिंग. पॉसिबल हो गया एंड विल भी हो गया. सो सेम वाटर इज ड्रंक बाय हर. तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? वहां पे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ इसकी जगह बस आ जाएगा, क्योंकि इस सिंगुलर सब्जेक्ट है वाटर, तो वाटर के लिए वर्ब ऑफ पर्पस क्या आएगा? बस आएगा. सो वाटर बस ड्रंक. अब उसके बाद हम जब यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा विल और बी. फाइन. इधर विल आएगा और उधर बी आएगा. सो विल एंड बी, these things should be there. Fine. Same sentence. I hope nobody has any problem in it. Now we will make a negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप ध्यान रखें, मैंने टेंस में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है. नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है. फाइन. सो इन दिस सेंटेंस वी विल डू द सेम. वाटर इज नॉट ड्रंक बाय हर ऑल डे. बाकी पूरा सेंटेंस सेम चलेगा, आपको कोई चेंज नहीं करने हैं. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ क्या हो जाएगा? इसकी जगह was हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम. मतलब कि water was not drunk by her all day. फाइन. यहाँ पे जो होगा, अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होते हैं फ्यूचर के अंदर, वो आपको ध्यान रखना है. क्या चेंज होते हैं देखिए. सो दैट इज वाटर विल, देखिए वाटर विल नॉट, देखिए वाटर विल नॉट. अब जो बी है वो बी इसके बाद में आएगा. विल नॉट बी, वाटर विल नॉट बी ड्रंक. उसके बाद बाकी का जो है वो सेम आगे तक सेंटेंस चला जाएगा. फाइन. तो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस वी जस्ट मेड. फाइन. अब इसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा वाइप कर देता हूं. उससे पहले आई विल जस्ट मूव असाइड एंड यू गाइस कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. फाइन. सो आई विल जस्ट मूव असाइड, टेक द स्क्रीनशॉट. फाइन. And now I'll just wipe it off and then I'll write the interrogative sentence. Fine. Let's do it. Interrogative sentence we are going to make, and before that I hope everybody understood this thing. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है, so I request all of you to please go to the older videos, watch tense introduction, tense, all of the tense like simple, continuous, perfect and perfect continuous, and then come here and then you guys will have the idea of what's happening in the passage. Fine. So like after that we have interrogative. What is the interrogative sentence? Interrogative sentence, to make that sentence we need to do one thing. What is that? We need to add on what? Nothing. We just need to replace what? This helping verb we are supposed to replace in the first place. Fine. So जो helping verb उसको हम सबसे पहले रख देंगे. So देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास is. So we just make it is
Is water drunk? Sorry. Is water drunk? Is water drunk by her all day? And last में question mark. Is water drunk by her all day? Question mark. Fine. क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग ऑब्जेक्ट उसको हमें आगे लेना है. आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? प्लीज आई रिक्वेस्ट जाए टेंस देखें. फाइन. एंड देन इज सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फाइन. सो दैट इज हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे, देन ऑब्जेक्ट आ गया. सो इज वाटर ड्रंक बाय हर ऑल डे. गॉट इट? नाउ सेम सेंटेंस इंटेरोगेटिव हमें यहाँ पे भी बनाना है. मैंने आपको बता रखा है ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी. इसकी जगह हम क्या कर देंगे? वर्स कर देंगे. बाकी का पूरा सेंटेंस सेम चलेगा. अब फ्यूचर में थोड़ा सा चेंज है, वही बी वाला. सो विल वाटर बी ड्रंक एंड देन बाकी का पूरा सेम चलेगा. फाइन. सो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. वो क्या है? I'll tell you. Is water not drunk by her all day? In that question mark. क्या हुआ? सिर्फ एक छोटा सा चेंज इंटेरोगेटिव नेगेटिव में. हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट. ध्यान रखना है कि नॉट लगाना है. फाइन. सो दिस इज हाउ इट बिकम्स इंटरनेगेटिव. अब इसका पास में ले जाएंगे तो अगेन वर्स एंड बाकी का पूरा सेंटेंस सेम. अब इसको फ्यूचर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए विल वाटर नॉट बी ड्रंक बाय ऑल डे. फाइन. सो दिस इज हाउ यू गाइस कैन मेक दीस सेंटेंसेस सिंपल वन. इस तरीके से आप सिंपल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम. And till here passive voice. Fine. This is the thing we are doing here. And for the next we have some more left. 3 हो गए हैं, 8 हैं, तो कितने बचे? 5. So that those 5 out of those 5 I'll make one more video. उसके लिए मैं पार्ट सेकंड डालूंगा, एक्टिव पैसिव पार्ट 2. उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके अंदर आपको जो बाकी के 5 जो टेंस चेंजेस बचे हैं, कौन से पैसिव में चेंज होते हैं, वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा. टिल देन यू गाइस जस्ट वॉच दिस वीडियो, एंजॉय दिस. Okay, do not forget to subscribe or like or comment if you like the video, and if it's useful to you only then, and share it with your friends also. Let them learn so that they can score some good marks in paper and everywhere. Fine. So this is my request to please watch this one and then wait for the part second. It will come up soon, maybe tomorrow as you're watching it today. So tomorrow it might come up. So at that time just watch that one, and then passive will be done. And please comment later on and let me know how did you like it, it was useful or not. Okay, thank you so much. Bye bye, take care, enjoy this.